Our next speaker, revered Swami Dayadeepanand Ji Maharaj, Medical Superintendent, रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल खार मुंबई। आप सभी को पता है महाराज जी एक नया दिशा का शुरुआत किए हैं, होलिस्टिक मेडिसिन, जो आज पिछले एक साल से कम चल रहा है, लेकिन महाराज जी के पास लोगों देश विदेश से आने लगे हैं, कंसल्ट करने लगे हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में महाराज जी आज का जो टॉपिक पे बोलने वाले हैं, दैट इज जपा एंड मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिकेशन। पूज्य स्वामी दयादीपानंद जी महाराज। Let us sit straight. स्पाइन को थोड़ा सीधा कर लें। लंबी गहरी सांस। 3 times we'll chant Om. Chant with me. Take a deep breath. I offer my salutations at the feet of Bhagavan Sri Ramakrishna, Ma Sharda Devi, Swami Vivekananda. I offer my pranams at the feet of Swami Satyadhevanand Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Mumbai. Also, I offer my pranams to Swami Raghavendranand Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Nagpur. Also, I offer my pranams all the monks who are sitting in the front row. My love and namaskars to all the devotees. Since today morning, we have been enjoying the spiritual energy which is being rejuvenated within all of us through Vedic chanting, bhajans, talks based on experience of our senior monks. As you just now heard from Revered Maharaj, one letter of Swami Turiyananji Maharaj, how it can be a guiding light for all the spiritual aspirants to experience the highest truth, Aham Brahmasmi. सर्वम खलविदम ब्रह्मा। ये जो वेदांत की एसेंस है, जिसको हम अध्यात्म जीवन से, योग जीवन से, ध्यान जीवन से जानते हैं, ये अध्यात्म जीवन के लिए जो एसेंस which are taught in the Vedas called Vedanta Upanishad, उसका इतना बढ़िया explanation how we can connect ourselves in our day-to-day life. हम सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि there are many devotees who have been coming to this ashram for so many years, and we also as monks in Ramakrishna Mission have been here for so many years. We have been listening through all the great saints, great people, that Tattvamasi, अहम ब्रह्मास्मि। उसके बावजूद हमारा नित्य अनुभव में we keep experiencing discomforts, dis-ease। आध्यात्मिक शिविर में आए हैं, ब्रेक में कोई एक डॉक्टर डिवोटी मिले तो पहला बात आपका
चालू हुआ, ओ आप कितने दिन के बाद मिले, अब तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आई हैव अ पेन इन माई लेग, আমাকে এখানে ব্যথা হচ্ছে। Though we heard you are Brahman, but we are experiencing the pain in the physical body called Annamaya Kosha. As long as our buddhi is established in this deha, which is called as deha buddhi, we experience sometimes pain, sometimes little happiness. We are all enjoying the heat because you are in a spiritual retreat. Shitoshna sukha dukkhada agama apayino anityatam titikshasva bharata. अर्जुन को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में बताया था, थोड़ा शीत है, कोल्ड है, थोड़ा उष्ण है, हीट है, सह लो, तितिक्षा। श्री रामकृष्ण बोलते हैं जो सहे वो। So these are the wonderful teachings, but coming to the point, আমাকে পায়ে ব্যথা হচ্ছে, আমাকে বসে বসে কোমরে ব্যথা হচ্ছে, I am having pain in my shoulders and I have a reason. I have been sitting here for so many hours. आप नहीं जानते 4 घंटे से हम बैठे हैं. Yes, that is the truth. This Deha Buddhi is very much inherent with us. Body-minded. To experience the highest Vedantic truths that we have been listening since morning, not only today, for the last previous days, which is the culminating day today with the spiritual retreat, we have to develop the Atma Buddhi. तो यहाँ पे है आत्म बुद्धि, हम यहाँ पे हैं देह बुद्धि लेके। यहाँ से यहाँ तक जो जाने का रास्ता है, उसके लिए एक स्पेशल फैकल्टी चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। That is something unique which can remove your pain, पायर व्यथा, and connect you to the highest आनंद which is already within you. कैसे उसको हम जागृत करें आत्म बुद्धि को देह बुद्धि से? That is the assignment for all of us. I feel God has given birth as a human being to all of us. बोलते हैं ना विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमे वैतत। क्या है? 3 बहुत रेयर हैं। एक है मनुष्य जन्म मिलना, उसके बाद I want to be free from the suffering, I want to go beyond this body mind। ये बुद्धि आना, मुमुक्षुत्व, ये दोनों आने से नहीं चलेगा। उसके साथ साथ एक महापुरुष मिले जो बोले यू आर दैट तत्वमसि, जो बोले तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी सी व्हेन नरेंद्र मीट्स Sri Ramakrishna for the first time, just with a touch. Please leave me, what are you doing? There are my parents at home. So ऐसा एक महापुरुष मिले जिनको हम अवतार पुरुष बोलते हैं, वो आके एक ट्रेडिशन, एक परंपरा सेट करें through great monks, and we are all happy to have most revered President Maharaj with all of us to grace the occasion. उनके सानिध्य मात्रेण we can experience the spirituality. Sometimes समय कम आचे, लंबा लाइन आचे, I am not able to touch his feet, it's okay. दर्शन मात्रेण। गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आपको ले जाए हरिद्वार में दिसंबर में, कितना लोग बोलेगा नहीं नहीं हमी तो दर्शन मात्र से वी आर हैप्पी। स्पर्श करी, स्नान करी ना, and in a take bath, darshan itself is enough. Deha buddhi. So as long as you are into deha buddhi, but there are sadhus, शिवो हम बोलते बोलते सुबह 4 बजे उठ के वो कोल्ड में भी जाके डुबकी लगाते हैं। तो I was talking about something which is with all of us.
It's rightly quoted by a psychologist, man is an intellect animal. Remove that intellect, man becomes an animal. मनुष्य में, प्राणी में कुछ फर्क है because the man has the capacity to think. The man has the capacity to discriminate, Viveka Shakti. That Viveka Shakti, if you can develop, you can transcend from your physical existence, so-called the physical body, to the ultimate existence, reality, which is Sat Chit Ananda Aham Brahmasmi Tattvamasi. How to develop that Viveka is the assignment for all of us. It can also be called as Yoga Buddhi. Second chapter, when you read Sankhya Yoga, please read with the commentary of Swami Ranganathanji Maharaj, 13th President of the Order. I am stressing it because there Swamiji has connected the modern neurology, physiology, anatomy with the highest Vedantic ideals. And these ideals were accepted by the topmost researchers, so-called quantum physics. उनके समय में just quantum physics चालू हुआ था. Quantum physics is totally depending on the principles of Vedanta. तो वो टाइम के जो टॉप साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, उनके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता था महाराज जी का. Academically, he was 8th class pass. और throughout the world, he traveled, spread the message of Vedanta, Thakurma Swamiji, in a way where the scientific community accepted. Based on those philosophy, we have developed a unique concept called holistic wellness, which can help you to go beyond your Deha Buddhi to reach the Atma Buddhi. So, Yoga Buddhi is the word which Maharaj has used. So, to develop that, Japa and Dhyana is the highest medication. That's what the topic I am going to tell in 5 to 10 minutes. भोजन तैयार हो चुका है. And we have also got very good appetite also. So, I can hold you for 10 minutes. Okay? Okay. Now, coming to Yatishwaranji Maharaj, in the book Meditation and Spiritual Life, what he writes: meditation and japa are natural ways of resting and filling the mind with new freshness. देखिए, ये है आत्मानुभूति का एक संत के वाणी. जपा एंड मेडिटेशन करने के बाद हमको फ्रेशनेस लगना चाहिए, बॉडी का पेन चला जाना चाहिए. আমি 1 ঘন্টা বসলাম তার জন্য ব্যথা হচ্ছে. Here Swami Yatishwaranji Maharaj is telling it should take away all the diseaseness, diseases, disorder, and make you a fresh man or woman. That means you are doing japa and meditation the way the Guru has taught to you. I believe majority of them are initiated devotees in this hall. You have been listening and practicing, and I am totally convinced in this heat also none of you were disturbed. बैठ के आनंद से सुन रहे थे. घर में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. So that's what the spiritual environment can do. So now coming to the point. So if the great realized souls tell this, japa and meditation should bring the fresh new energy in us. What are those things that we have to look into? उससे पहले भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं हमारा दुख का कारण. In medical terms, if you go on naming the disease, कोई अंत नहीं है. A to Z बोलो, कॉमन कोल्ड टू कैंसर बोलो, इतना मैं लिस्ट बोल सकता हूँ, हजारों डिसीज का नाम. संस्कृत में उसका एक ही शब्द दिया है. फिजिकल बॉडी में जो भी बीमारी है उसको बोलते हैं व्याधि. क्या बोलते हैं? व्याधि. इसका कारण है आधि, मेंटल डिसीज. Mental disease is the root cause for the physical disease. The scientists also accept it as psychosomatic disorder.
I think many of the doctors also sitting here, immediately they said, yes, yes, I saw them. So, the psychosomatic disorders, uska root cause kya hai? Usme etiology is the word they use. What is the etiology of this disease? jaise bolte hain. Etiology is unknown. Modern psychologist says root cause for the mental disease is not known, which is the root cause for the physical disease that we all suffer. जो व्याधि है उसका कारण है आदि, लेकिन आदि का क्या कारण है वो नहीं जानते हैं. Our rishis have rediscovered the highest truth, scientists of the inner world, and given the highest philosophy in the form of Vedanta Upanishad. Aham Brahmasmi, जो तुम सोच रहे हो है ही नहीं तुम. कितनी बड़ी बात है. So when we say this, अरे आप तो बोल रहे हो तुम नहीं हो, मैं तो ये फील कर रहा हूं. उसी के लिए स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया अज्ञान को कैसे रिमूव करना है. तो टू डेवलप दैट फैकल्टी, टू डेवलप दैट बुद्धि, यू शुड बी ए योगी और योगिनी. Only a yogi or yogini can be free from all the physical and mental disorders that we all are suffering. मैंने बताया उसका लिस्ट मैं करते जाऊं, उसका अंत नहीं है. I have got diabetes. I want to see a best diabetologist on the earth. And there are people who went to see the best diabetologist on the earth and could not find a remedy. Came back to holistic wellness and diabetes is reversed. Can you believe this? Diabetes is reversible. HbA1c 12%, more than 10 years diabetes was reversed through holistic medicine. That is the power of Vedanta. That's where japa and meditation can be highest medication. One of our doctor, her own brother is a doctor. Sleeplessness, anxiety, बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है. बीपी का टैबलेट लेने से बीपी लो हो रहा है, नहीं लेने से बीपी बढ़ रहा है, नींद ठीक नहीं हो रहा है. We stopped all the medication, free from sleeplessness, free from anxiety. We have the testimonial. That is the power of Vedanta. That is the power of Vedanta and Upanishad. And coming to the topic, that is the power of japa and meditation. I will not be reading much about japa and meditation, but श्री कृष्ण परमात्मा ये सब जो रोग है उसका कारण बहुत अच्छा ढूंढ के निकाला है. ध्यायतो विषयान पुंसः, रोज वड़ा पाव के ऊपर मेडिटेशन करोगे, डायबिटीज भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, साथ में फ्री में गिफ्ट आएगा हाइपरटेंशन. डॉक्टर के पास जाओगे, इसके लिए एक टैबलेट, इसके लिए एक टैबलेट, इसके लिए टैबलेट और उसके लिए एक टैबलेट, एंड 10 टैबलेट तो ऐसे लिखेंगे. नींद नहीं और उसके लिए, दर्द है उसके लिए, एसिडिटी है खाते हैं एसिडिटी होता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, 10 टैबलेट्स इन गिफ्ट. बाय 4 गेट 10 फ्री. जब तक ध्यायतो विषयान पुंस, दैट इज द रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीज. अगर हम उसी चीज को देखते रहेंगे, उसी चीज को सोचते रहेंगे, इसका अंत नहीं है. दैट वाज साइकोलॉजिक स्टडी. बच्चे थे स्कूल में, रोज टेबल के ऊपर ऐसे ही फ्राइड आइटम्स रखा जाता था. तो घर में जाके माँ को मेरे को वो चाहिए मांगते थे. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रोज टेबल के ऊपर उसके जगह में फ्रूट्स रख दिया. वो बच्चे जाके हमको फ्रूट्स चाहिए मांगने लगे. आइज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डजंट नो एंड वाइस वर्सा. जो आप आंख से देखते हैं मन उसी को ग्रसित करता है, इट ग्रैस्प्स. एंड जो आपने मन में बरक के रखा है उसी को आंख देखते हैं. तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ये रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीज. हमारा ध्यान किधर है? To be frank with you all, every one of you are meditating every day. कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं. सब लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर कर रहे हैं? जड़ के ऊपर जो चैतन्य नहीं है, जगत के ऊपर जो ईश्वर नहीं है. अज्ञानता के वजह से ज्ञान से हम दूर हैं, विषय बुद्धि से हम आत्मबुद्धि से दूर हैं. कमिंग टू द पॉइंट,
क्या होता है, बार बार अगर हम वस्तु को देखने लगते हैं, बाहर का वस्तु को, उसके साथ अटैचमेंट, संगस्तु पजायते, अटैचमेंट डेवलप हो गए। रोज जिसको वो देखोगे उसके साथ अटैचमेंट होगा ही। संगात संजायते कामः, जैसे अटैचमेंट हो गए, चाहिए चाहिए और चाहिए, उड़ा पाओ एक नहीं 4 चाहिए, क्योंकि रोज देख रहे हो उसको। उसके वजह से अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा, यू विल गेट एंगर, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट, मैं इतना कमाता हूं 4 वड़ा पाव नहीं मिलेगा मेरे को। डोंट फील अदरवाइज, नॉट ओनली वड़ा पाव, ऑल द रॉन्ग ईटिंग, आई एम जस्ट मेंशनिंग वन वर्ड, छोला भटूरा बोलो, पराठा बोलो, whatever wrong eating which is going to cause the disease. क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, सम्मोहात स्मृति चला गया। जब स्मृति चला जाता है बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसका बुद्धि नहीं है, मैन इज एन इंटेलेक्ट एनिमल, जिसका इंटेलेक्ट चले गया क्या बन गया वो, एनिमल। एनिमल इज गाइडेड बाय द नेचर, लेकिन मैन कैन गो बियॉन्ड द नेचर। काऊ ही रहेगा, वॉल ही रहेगा, लेकिन मनुष्य मात्र है उसके परे जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल फैकल्टी दिया है, थिंकिंग कैपेसिटी। तो जब तक हमारा ध्यान बाहरी चीजों के प्रति रहेगा, आपको व्याधि भी आएगा, आधि भी आएगा। इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम व्याधि एंड आधि, रंगनाथन जी महाराज कितना सुंदर बताया, finger pointing towards outside, that is parak. The same finger pointing towards your side is pratyak. That and this. I am not that, I am this Atman. That माने I am not this outside thing. स्वामी जी ने बहुत अच्छा, शर्ट जब मेरा बोलते हैं, शर्ट मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं और कुछ हूँ, शरीर मेरा है लेकिन मैं नहीं हूँ शरीर। तो he went on explaining so beautifully in just half an hour how to do that inner investigation. So every day can we have that alert brain, उसी को बोलते योग बुद्धि। ध्येय वस्तु धातृ ध्यान, here is our object of meditation, here I am धातृ, and the bridge which connects me to my ध्येय वस्तु is called dhyana. कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ गॉड, तैलवत, जैसे एक पात्र से हम दूसरा पात्र में तैल डालते हैं। एंड नाम जप, यू नो ऑलरेडी सो वेल, और शमिका जी शी रेड, होली मदर हैज टोल्ड, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट, आई विल बी ओनली टॉकिंग व्हाट आर द असाइनमेंट्स वी ऑल आर सपोज टू डू टू डेवलप दैट योग बुद्धि। हमारे एक सीनियर स्वामी जी बोलते थे, मैं कोई मिराकल्स के बारे में, जप के बारे में, ध्यान के बारे में, सिद्धि के बारे में नहीं बात करूंगा, आई विल ओनली टॉक व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल दैट अ साधका शुड फॉलो इन हिज लाइफ। अगर तुम उसको पकड़ के करने लगोगे, अपने आप तुम समाधि तक पहुंच जाओगे। व्हाई शुड आई टॉक अबाउट समाधि? सो व्हाट आर दोज बेसिक प्रिंसिपल्स दैट ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो? यमा नियमा, अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, 10 पॉइंट्स। 10-10 मिनट में लोग 100 मिनट्स होगा, नो टाइम, ऑलरेडी यू हर्ड अ लॉट। नेक्स्ट, यमा नियम के बाद आसन प्राणायाम। अगर आपका रीढ़ का हड्डी में दर्द आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू सिट, करेक्ट इट, आसन प्राणायाम। थोड़ा ही चलते हैं, सांस फूलता है, रात को नींद नहीं होता है, डिस्टर्बर्स स्लीप हो रहा है, प्राणायाम, प्राण शक्ति का संचार सही से नहीं हो रहा, प्राणायाम करो। टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर सेंसेस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ प्राणायाम, स्वामी विवेकानंद जी के जैसे। इट्स नॉट जस्ट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट्स कनेक्टिंग योर सेल्फ टू योर डीपर सेल्फ, योर रियल सेल्फ, प्राणायाम। आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा, छोड़ना है उड़ापाव को। এখানে ব্যথা হচ্ছে, you have to give it up, I am not that. प्रत्याहार धारणा, constantly think about what you are. पराग प्रत्यक, finger pointing outside, finger pointing towards yourself, try to see yourself. धारणा, constantly think, अहम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंद शिवोहम। When you do that, now you are ready for dhyana. Dhyana is the 7th step. So this is all the
preparation that we are all doing for the last 3 days to get that 1 minute's proper dhyana, that 1 minute's proper japa, which can give you a fresh energy, which can make you free from all the pains and aches. When that happens, wonders do happen. मान लो मेरे को रोज 100 सूर्य नमस्कार लगाने के लिए मेरे गुरु ने बताया, एक ही दिन में होगा क्या? नहीं. Start with 5, increased with 10, 20. Once you reach that goal, आप छोड़ नहीं सकेंगे. मेरा बात सुनिए, एक बार उसमें आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे, you will not be able to give up. In the beginning लगता है कि इसको हैबिट कैसे नया बनाएं, डिफिकल्टी तो है, लेकिन गुरु कृपा से, आपका संकल्प से अगर उसमें आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, यू वेरी मच यू कैन डू इट. सो विद दिस ब्रीफ नोट आई वुड लाइक टू नो गिव द असाइनमेंट्स फॉर ऑल द साधकास who want to be free from Vyadhi and Adi, and Nama, Jap and meditation is the highest medication, believe me. Number 1, we should have wonderful दिनचर्या. अगर दिनचर्या आपका सही हो, सब कुछ ठीक होता है. पहला दिनचर्या क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. रात को जल्दी सोओगे तभी सुबह उठे हुए. साइंटिफिक रीजन क्या है बाबा? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जिसका शरीर में सही से नहीं बनता है, उसको आदि होता है. आदि के वजह से व्याधि होता है. इफ your body is not producing melatonin and serotonin properly, you will get mental disorders starting from sleeplessness to pagalpan. So early to bed, early to rise करना कितना जरूरी है, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा ना. अर्ली डिनर, शाम को 6 बजे खाना खाओ, 8 बजे तक डाइजेशन हो जाएगा, 9 बजे से तक सोओगे. 9 to 4 इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप. योग निद्रा का समय है. ब्राह्मी मुहूर्त में सही से उठते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है. सेरोटोनिन इज अ फ्री मूड एलिवेटिंग हार्मोन. 2000 से 5000 का एक गोली लिखता है साइकियाट्रिस्ट जब पेशेंट को डिप्रेशन होता है. अगर हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करें, आपका शरीर सेरोटोनिन प्रोड्यूस करेगा. यू विल नॉट नीड अ साइकियाट्रिस्ट टू ट्रीट योर डिप्रेशन. दैट्स हाउ जपा एंड मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिकेशन. एक हो गया. दूसरा, राइट ईटिंग, राइट थिंकिंग, राइट एक्टिविटी. और 3 मंत्र बस. आई विल फिनिश इन 5 minutes. आई नो इट्स लंच टाइम. सो राइट ईटिंग में पहले तो मैंने गिना दिया गलत खाना क्या है जिसकी वजह से व्याधि और आदि हो रहा है. 6 things to avoid: sugar, salt, oil, milk and milk product, non-vegetarian food and the processed food. क्यों? गन्ना को सब न्यूट्रिएंट्स हटा के एक ही मॉलिक्यूल डाल के उसके अंदर केमिकल डाल के डब्बा में रख दिया, उसका नाम आपने दिया चीनी. असल में वो है जहर. जहर का नाम हमने क्या दे दिया? चीनी. तो शुगर इज द नंबर 1 पॉइजन. ट्राई टू रिमेंबर दिस. नंबर 2, भगवान में सभी फल और सब्जी में सही मात्रा में सब सॉल्ट्स को भर के रखा है. हमने क्या किया? NaCl उठा के डब्बा में केमिकल डाल के नाम रख दिया सॉल्ट. भगवान ने जो अमृत को दिया था हमने जहर में कन्वर्ट कर दिया. सो पॉइजन नंबर 2 इज सॉल्ट. जितने भी नट्स हैं, मूंगफली आदि, उसमें भगवान ने सब न्यूट्रिएंट्स को समान मात्रा में रखा है. हमने क्या कर दिया? सब हटा के सिर्फ ऑयल लेके उसको केमिकल ऐड करके रिफाइन करके वी यूज रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वी ऑल लर्न. महाराज वेरी नाइसली एक्सप्रेस्ड. वी लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न फूल्स. हम कितने बड़े फूल्स हैं. तो एक्सेप्ट दैट. अज्ञानता के वजह से हमारे अंदर मूर्खता है, ज्ञान से उस मूर्खता को हटाना है. तो हमने बोला तीसरा जहर है ऑयल. Groundnut is good, groundnut oil is bad. Groundnut oil is amrit, groundnut is amrit, groundnut oil is poison. 3 हो गए. नेक्स्ट 3 के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा.
उसमें डिटेल में आना पड़ेगा. व्हाई मिल्क शुड बी अवॉइडेड, व्हाई नॉन वेजिटेरियन फूड शुड बी अवॉइडेड, व्हाई प्रोसेस्ड फूड बी, प्रोसेस्ड मतलब जैसे आपका दाल है, दाल का आपने छिलका निकाल दिया, इट बिकम्स प्रोसेस्ड फूड. सो ऑल दैट इज प्रोसेस्ड फूड इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, इट्स गोइंग टू क्रिएट द डिसीज. सो 3 चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया. 3 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको आना पड़ेगा May 10th में होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक के अटेंड करने के लिए. दिस इज अबाउट फूड. नाउ कमिंग टू राइट थिंकिंग. उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, महाराज जी ने पूरा बता दिया वेदांत का सार. अगेन जपा एंड ध्याना इज द हाईएस्ट मेडिकेशन. इसको सोचो राइट थिंकिंग में. नेक्स्ट राइट एक्टिविटी. अगर कहीं भी शरीर में दर्द आ रहा है उसका रीजन है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो. अरे हम तो गांव में खेती करते हैं, सुबह से शाम तक खेती करते हैं, लेकिन कौन सा पोजीशन है? एक ही पोजीशन में. सो एक ही पोजीशन में रहेगा, मसल जो है एक्सटेंशन फ्लेक्शन नहीं होगा और रिस्ट रोटेशन पूरा नहीं होगा तो रिस्ट में पेन आएगा ही. भगवान ने 32 दांत दिया है, आप नहीं चबाएंगे तो दांत में दर्द आएगा, गम्स में दर्द आएगा, वीक गम्स, वीक मसल्स, चेहरा का स्माइल चला जाएगा वीक मसल्स की वजह से. तो सही से चबा के खाने से आपका सेहत अच्छा रहता है. तो खाना भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, चबा के खाने से. सांस लेना भी एक फिजिकल एक्टिविटी है. तो इफ यू आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी यू आर क्रिएटिंग व्याधि एंड आदि फॉर योर सेल्फ. सो फिजिकल एक्टिविटी इज ए मस्ट. स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? वॉट वी वॉन्ट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील. जो भी हमारा बीमारी है, जो भी हमारे शरीर में व्यथा है, उसका रूट कॉज है वीक मसल्स एंड वीक बोन्स. दिस अगेन वी हैव डन अ रिसर्च स्टडी एंड प्रूव्ड विथ टेस्टिमोनियल्स. हमारे महाराज जो आए थे बांग्लादेश से, उनको कोई एक सर्जन ने बोल दिया स्पाइन में दिक्कत है, उसको ऑपरेशन करना है, और एक दूसरे महाराज ने बताया नहीं नहीं रुको, ये 2 मिनट जाके तुम महाराज जी से मिलो. ही केम, ही डिड व्हाट वी टोल्ड. उनका स्पाइन का सर्जरी करना नहीं पड़ा. विदाउट सर्जरी ही इज ऑल राइट. व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस? हियरिंग इज बिलीविंग. श्रवण अभी तक महाराज जी ने जो सुनाया हमको, अगर उसको बिलीव करके मनन करते हैं, निधिध्यासन जीवन में उतारते हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. दैट इज द पावर ऑफ जपा एंड मेडिटेशन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी इज अ मस्ट. लेकिन कितना पूछते हैं लोग, कितना वॉकिंग करना है? मैं बोलते कितना वॉकिंग कर. वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या नहीं आता है वो थोड़ा टहल लिया, नेचर में रिलैक्स कर लिया. फिजिकल इंटेंस एक्टिविटी 45 मिनट्स मिनिमम एवरी डे. यू शुड स्वेट. अपना एज अपना हेल्थ को देख के करिए, बट यू शुड डू दैट. फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट. क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी करने से? प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सो दिस इज व्हाट इज योग बुद्धि. दिस इज व्हाट इज योग जीवन पद्धति. योग जीवन पद्धति अपनाने से, योग बुद्धि खुल जाने से you become a yogi or yogini. A yogi or yogini alone can be free from all the disease. व्याधि और आदि. व्याधि और आदि का अल्टीमेट मेडिसिन है जपा एंड मेडिटेशन. So this is in brief. I am very thankful to all of you. Though we have exceeded the time for the lunch, you are all eagerly waiting and hearing. I am so thankful. I offer my pranams at the feet of Swami Satyadevanand Ji Maharaj and Swami Ji Raghavendran Ji Maharaj for their patient listening. One disclaimer I have, whatever talk I have given, it is for the new spiritual aspirants, not for senior monks, not for already established senior devotees. This is for a new beginner who is having आदि and व्याधि. उसी को फोकस करके मैंने बताया. जो ऑलरेडी देह बुद्धि से परे गए हैं उनको हमारा प्रणाम, और जो अभी तक आदि व्याधि में सफ़र कर रहे हैं, आई थिंक दीज असाइनमेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प. नेक्स्ट एनुअल सेलिब्रेशन में जब स्पिरिचुअल रिट्रीट होगा, 365 डेज हैं हमारे पास. देखते हैं कितने लोग कितना असाइनमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. जितना करेंगे उतना मिलेगा. करो और पाओ कृपा. भगवान का कृपा
गुरु का कृपा उन्हीं को होता है जो शास्त्र वाक्य को, गुरु वाक्य को पालन करता है, उसके लिए मेहनत करता है। हमारे एक स्वामी जी बोलते थे, शो मी द पीपल अराउंड यू, आई विल लेट यू नो हु आर यू। आपके आसपास इर्द गिर्द कौन लोग हैं उनको दिखाओ, उनको देख के बताऊंगा तुम कौन है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सत्संग। सत्संग में इतने डिवोटीज, साधु लोग बैठ के आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक तरंग में रहना, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। हमारे स्वामी जी बोलते थे, आश्रम में एक अद्भुत वातावरण निर्माण किया गया है, आप लोगों का काम है यहाँ के इस अद्भुत वातावरण में रह के उसका अनुभूति करके आपको घर तक ले जाना। मेक योर होम एज अ लिविंग टेम्पल, दैट्स व्हाट अ रियल स्पिरिचुअल साधका। आई हैव सीन सच डिवोटीज, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम टेलिंग। और श्री रामकृष्ण तो दोनों के लिए बोला है, सन्यासी के लिए भी वही आदर्श है, गृहस्थ के लिए भी आदर्श है। सो आई प्रे टू भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, so that they bless us, so that we become true devotee by following the assignments to develop that Atma Buddhi, to go beyond that Deha Buddhi. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. थैंक यू सो मच महाराज। आपने हमको बहुत सरल पद दिखा दिए हैं सभी को। अभी इट्स अप टू अस हाउ मच टू फॉलो एंड फ्रॉम व्हेन। नॉट सो इट्स वेरी इजी, बिल्कुल सरल पद है। सो एनीवे, नाउ वी ब्रेक फॉर लंच। वन सिंपल अनाउंसमेंट बिफोर लंच। In the second post-lunch session, we have a session of question answers. There are blank slips kept at the registration counter. Those who want to ask any questions, you may please write down the question and put it back at the registration counter before coming back to the auditorium after half an hour after having your lunch. Please go ahead to Vivekananda Hall, enjoy your lunch and come back fast. Thank you. भजन के बाद भोजन, भोजन के बाद फिर भजन है, इसलिए भजन कम भोजन ज़्यादा करना है, भोजन कम भजन ज़्यादा करना है। सो कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल, जस्ट टू सेव द टाइम, जस्ट टू सेव द टाइम।